हेलो स्टूडेंट्स, ऑन माय चैनल टॉक मैथ्स राजीव महेश्वरी एक बार फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ हम पहुंच गए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारे पास एक जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखिए रोले थ्योरम, मीन वैल्यूज थ्योरम मैंने कराई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टेंजेंट्स एंड normals. Tangent, as we know, to any curve is a line that touches the curve at one point. एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाती है किसी भी कर्व को, वो उसकी टेंजेंट कहलाती है। जैसे सपोज दिस इज ए कर्व y equal to fx. On this curve, a line touching the curve at one point. This line is known as the tangent. Or at this point, the point of contact, at the point of contact, any line which is perpendicular to this tangent line, that is normal. इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है ये नॉर्मल है and this line is tangent. Making an angle theta with positive direction of x-axis. अब हम जानते हैं what is the slope of any line. तो slope of any line is tan theta, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे m से. m is tan theta. That is dy upon dx. जो हमने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव कराया था तो ये बताया था कि dy upon dx का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट. So slope of the tangent is dy upon dx. This becomes slope of tangent. That is dy upon dx. At the point, if any point is given, x1, y1, so at the point x1, y1, this is the slope of the tangent. Suppose this slope is I represent it with the letter m. So m is dy upon dx at the point x1, y1. Then what will be the slope of normal? Slope of normal will be minus 1 upon m, as we know for parallel lines m1 equal to m2, and for perpendicular lines m1 m2 equal to minus 1. तो जब लाइन पैरेलल है देन m1 इक्वल टू m2, और जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. तो जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी -1 अपॉन m. और अगर पॉइंट नहीं दिया है, सीधे कर्व में हमसे पूछा गया है फंक्शन में, तो हम सीधा बोलेंगे -dx अपॉन dy, मतलब -1 अपॉन dy अपॉन dx. सो this will be the slope of the normal. Now to find the equation of tangent and normal, तो एक ही बात हो गई स्लोप की, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल. उसके बाद हमें अगर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस फाइंड करने को पूछा जाता है. So to find the equation of tangent and normal at the point x1, y1. Equation of tangent at x1, y1. अब देखो किसी एक पॉइंट पर कोई लाइन की इक्वेशन निकालना, ये 11th क्लास से निकालते आए हैं. क्या होती थी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. एंड व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, that will be y minus y1 equal to -1 upon m x minus x1, or where m is the slope, that is dy upon dx at the point x1, y1. First we will find slope m dy upon dx at the point x1, y1. Then equation of tangent
y minus y1 equal to m into x minus x1, or equation of normal y minus y1 equal to minus 1 upon m into x minus x1. अब एक दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखते हैं. देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एक दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं. पहले तो एक ही क्वेश्चन है कि फाइंड दी, you have to find the points on the curve, find points on the curve y equal to x cube minus 2x square minus 2x at which the tangent lines are, at which tangent parallel to y equal to 2x minus 3. So we have to find a point on this curve at which the tangent line is parallel to this line. So we know when two lines are parallel, then m1 equal to m2. Slopes are equal. अब देखिए slope depending upon the situation. अगर एंगल दिया है, लाइन इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हमें पता है स्लोप क्या होगा, tan 45 मतलब tan थीटा होता है. अगर हमको दिया हुआ है कि लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तब हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालते हैं वैसे. और जब दिया हमको y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू fx, तब स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, dy अपॉन dx. So dy upon dx is 3x square minus 4x minus 2. This is the slope of the tangent. Or slope of this line, suppose this is m1. And slope of this line, that is dy upon dx. Now both the lines are parallel. So m1 equal to m2. It means 3x square minus 4x minus 4 equal to 0. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, दो वैल्यू आ जाएंगी x की, वो पॉइंट निकाल लेंगे उसे. 2x minus 4 equal to 0, 3x x minus 2 plus 2 x minus 2 equal to 0. तो x minus 2 into 3x plus 2 equal to 0 gives you x equal to 2 and x equal to minus 2 by 3. So when x is 2, what is y? Y becomes 8 minus 8 minus 4. That is minus 4. When x is minus 2 by 3, y becomes minus 2 by 3 का cube minus 8 upon 27 minus 8 upon 9 minus 2 into minus 2 by 3, that becomes plus 4 by 3. तो भाई इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं. 27 minus 8 minus 24 plus 36. So 4 upon 27. ठीक है, वो चेक कर लेंगे कहीं कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है वैसे तो. So the points are 2 minus 4 and minus 2 by 3, 4 by 27. So there are 2 points at which the tangent drawn to this curve will be parallel to this line. कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम जानते हैं टेंजेंट जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, देन व्हाट इज द स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन इज 0. तो उस केस में हम लेते हैं dy upon dx equal to 0. Whenever tangent is parallel to x axis, then dy upon dx is 0. अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, that is again from board. CBSE 2013 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब की बार हमको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equal to x square minus 2x plus 7. That is, first part is parallel to 2x minus y plus 9 equal to 0, and second is perpendicular to 5x minus 15y minus 13 equal to 0. Question has been asked in the year 2014. इक्वेशन फाइंड करना। अब ये क्वेश्चन था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इसमें हमको फाइंड करना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट इसमें नहीं दिया है, लेकिन क्या कह रहे हैं ये कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो इसके पैरेलल हो। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इससे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy upon dx. It is 2x minus 2. This is the slope of the tangent. Also we will find the slope of this line. अब ये जो लाइन दे रखी है इसका भी स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने को यू कैन पुट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, या इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। अब तो हम डेरिवेटिव जानते हैं। व्हाट विल बी डेरिवेटिव, 2 माइनस dy upon dx इक्वल टू 0. So it gives you dy upon dx equal to 2. So what is the slope of the tangent? That is 2x minus 2. What is the slope of the line? 2. Both are parallel. मतलब x equal to 2. जब x 2 है तो y that we will find from this. Sorry, excuse me. Y equal to 7. Point 27. अब इस पॉइंट पर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। देखो पॉइंट मिल गया हमको 27. सो इक्वेशन टेंजेंट दैट इज y minus 7 equal to m. अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इसकी टेंजेंट और ये लाइन। तो हम डायरेक्टली ये स्लोप भी ले सकते हैं या यहां से निकाल सकते हैं स्लोप कि dy upon dx at this point 2, 7, तो it will be 4 minus 2, 2. तो y minus y1 equal to m into x minus x1. So it will be y minus 7 equal to 2x minus 4. 2x minus y plus 3 equal to 0. This is the line of, this is the equation of tangent to this curve that is parallel to this line. अब एक परपेंडिकुलर वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ भी देखो, we will find the slope. इसका स्लोप फाइंड करना है हमको, तो डिफरेंशिएट कर देंगे 5 minus 15 dy upon dx. So dy upon dx equal to 5 upon 15, that is 1 upon 3. अब इसका स्लोप हमारे पास टेंजेंट का क्या था, 2x minus 2. ये तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं। और स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/3. अब की बार कहा जा रहा है बोथ आर परपेंडिकुलर, तो 2x minus 2 as we know, two lines are perpendicular, then m1 into m2 equal to minus 1. So 2x minus 2 equal to minus 3. 2x equal to minus 1. X is minus half. When x is minus half, what is y? Y is minus 1 by half का square, that is plus 1/4, minus 2 into minus half plus 1 plus 7. 7 plus 1 8, 4 is 32 plus 1 33 upon 4. So the point is minus half and 33/4. Now we have to find the equation of tangent on this point. Same बिल्कुल तरीके से, तो it is
y minus 33/4 equal to, this time the tangent is perpendicular to this line. यहाँ तो पैरेलल थी, तो जो लाइन का स्लोप आया था ना निकाला हमने 2, वो u का u हमने यहाँ यूज कर दिया या यहाँ से निकाले। इसमें ये लाइन और ये टेंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये स्लोप परपेंडिकुलर का है, तो इसका स्लोप या तो हम निकाले यहाँ से, व्हाट इज द स्लोप 2x minus 2, तो स्लोप क्या हो जाएगा, देखो मैं साइड से यहाँ दिखा दूं तुम्हें, स्लोप विल बी 2x minus 2, और व्हाट इज x minus हाफ, तो 2 into minus half minus 2, that is minus 3, तो स्लोप विल बी -3। या यहाँ से हम अगर यूज करें तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 into m2 इक्वल टू -1, तो इस लाइन का अगर स्लोप 1/3 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हुआ -3, जो कि हम यहाँ से फाइंड करें या यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लें, तो -3 into x minus x1, इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, 4y minus 33 इक्वल टू minus 3x minus 3 2x plus 1 upon 2 upon 4, तो लॉजिक 2 to the 4 होते हैं, 4y minus 33 equal to minus 12x minus 6, taking all the terms this side, 12x plus 4y minus 27 equal to 0. 12x plus 4y minus 27 equal to 0. Entire equation is divisible by 3. So it is 4x plus y minus 9 equal to 0. Oh sorry, this is not divisible by 3. Not divisible. So it is 12x, ठीक है, 12x plus 4y minus 27 equal to 0। तो ये तो लाइन हो गई उस इक्वेशन, उस टेंजेंट की जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई कि जिसमें हम टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस निकालते हैं और कोई कंडीशन दी होती है कि भाई पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या इट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इस तरह से कुछ भी सिचुएशन हो तो उसमें हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस निकालना या पॉइंट निकालना, ये आज मैंने बात की है। इससे रिलेटेड इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इसके थोड़े और क्वेश्चंस लूंगा, सो दैट द टॉपिक इज क्लियर टू यू। उसके लिए आप देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें।